Hello friends, welcome back to the online classes. Today I'm going to give the summary of lesson number 6, gratitude. Okay, gratitude means what? Thank you. To say a few words of thanks. We always hear this in the programs and all. Whenever the word of thanks is there, the person comes and says that I am grateful, to say the few words of gratitude. That is the word gratitude. If you woke up this morning happy and healthy, you are more blessed than a million who died last night. If you have food to eat, clothes to wear and a house to live in, you are much better than those who do not possess these. Now, आज अगर आप सुबह उठे हैं, okay, if you have got up in this morning with healthy heart, healthy mind, healthy body, you are blessed because last night there are so many who have died. होता है ना, कई लोग हैं जो पिछली रात को सोए तो थे लेकिन सुबह उठ नहीं पाए. क्यों? अकाल मृत्यु की वजह से एकदम से मर गए, कुछ हो गया, ठीक है, हार्ट अटैक आ गया होगा या कुछ और हो गया होगा, जो वो व्यक्ति उठा ही नहीं. आप किस्मत वाले हैं कि आज आप उठे हैं एक स्वस्थ शरीर के साथ. टुडे यू हैव फूड to eat, you have home for shelter, you have clothes to wear. But there are so many who do not have all these basic things. If your parents are there to take care of you, you are very fortunate. If you can hold someone's hand, hug him or even touch him on the shoulder, you are blessed because you have a friend. If you can read this message, you are more blessed than over 2 billion people in the world that cannot read and write. अगर आपके पास आपके माता पिता हैं, आपके मित्र हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप किस्मत वाले हैं. क्यों? इतने ऐसे कई लोग हैं ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, वो अनाथ हैं. ऐसे कई बच्चे हैं जिनके कोई दोस्त नहीं, वो अकेले की ज़िंदगी बिता रहे हैं. और कई ऐसे बच्चे हैं, लोग हैं जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है. तो वो सब उनकी किस्मत खराब थी, उनको कुछ नहीं मिला. लेकिन आप किस्मत वाले हैं क्योंकि आपके पास आपके माता पिता हैं, आपके दोस्त हैं और आप पढ़ लिख सकते हैं. Showing gratitude, appreciation or truthfulness is a positive attitude for the acknowledgement of a benefit that one has received or will receive. People who experience gratitude are happier, more helpful and forgiving. Gratitude provides you the abundance of happiness that you desire and deserve in life. So, gratitude means what? अगर आपको ये सब ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके दोस्त हैं, आप पढ़ लिख सकते हैं, तो आपने कभी अपने माँ बाप को थैंक यू बोला है? क्या आपने ईश्वर को धन्यवाद कहा है कि आज मुझे आपने एक नया जीवन दिया है, आपने मुझे एक स्वस्थ शरीर दिया है, आपने मुझे पढ़ने के लिए दिमाग दिया है? क्या आपने कभी धन्यवाद कहा ईश्वर को? क्या आपने धन्यवाद अपने माँ बाप को कहा जो आपकी इतना देखभाल करते हैं? मम्मी तो सुबह उठ के नाश्ता पानी से बना के आपको देती है. क्या आपने मम्मी को थैंक यू बोला या आई लव यू बोला? सब क्या है? दिस ऑल आर पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड. जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, एक अनोखी मुस्कान हमारे चेहरे पे आती है, एक अजीब सी तरंग हमारे शरीर में दौड़ने लगती है. वाई? बिकॉज आई हैव received something and in return I have said just a word thank you. It has to come through the heart. दिल से आना चाहिए, ना कि दिमाग से, क्योंकि जो हम दिल से कहते हैं वो प्यार से कहते हैं, ठीक है? That means I love that person, not hate that person. So it has to be through your things, and it brings a lot of happiness in your life. You become kind of a very source of happiness. Our basic attitude of life is one of claiming rights and shunning responsibilities. We have ceased to appreciate the blessings of life such as health, the beauty of nature, human relationship, love, and to respond to them with gratitude. Gratitude is the key to happiness. We feel that life owes us the fulfillment of every desire, and if we do not receive this, we feel bitter and envious. So, आजकल हमारे जो आजकल की जो ज़िंदगी है, जो बेसिक ज़िंदगी चल रही है, हम कैसे जीवन बिताते हैं? हम हमारे जो राइट्स हैं, वी जस्ट टॉक अबाउट आवर राइट्स. दिस इज़ माय राइट, आई वांट दिस, आई कैन नॉट डू दैट. हम अपने जिम्मेदारी से भागते हैं, हम अपना काम नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि हमको वो सब मिले जो हम करते नहीं हैं, ठीक है? ऐसा नहीं होता. हमें वी हैव टू डू समथिंग, देन ओनली वी रिसीव समथिंग. हमने थैंक यू बोलना बंद कर दिया. हमें हमेशा अच्छे स्वास्थ्य मिला है. आज जैसे बारिश हुई, ठीक है, आज इतना बढ़िया मौसम हुआ, क्या हमने आज ईश्वर को धन्यवाद दिया?
हे प्रभु आपको धन्यवाद आज के इस अच्छे मौसम के पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी, है कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा उमस थी, पसीने आ रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे, लेकिन आज देखो कितना खूबसूरत मौसम है। और इस मौसम को क्या हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया, हे ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज ऐसा बढ़िया मौसम दिया, वो भी आज वीकेंड के दिन। Imagine just a weekend holiday today. You can go out, you can enjoy kind of picnic you can have. Did you thank the God for this? No? Then take a time and thank God for this beautiful weather. Why should we be thankful? हमें क्यों थैंक यू बोलना है? क्यों? क्या कारण है इसका? Gratitude allows you to make you aware of the good things that are happening in your life. इससे क्या होता है कि जब हम थैंक यू बोलते हैं तो ये हमें हमेशा बताता है कि मेरे आगे पीछे क्या चल रहा है, मुझे आगे बढ़ाने में किन किन लोगों का हाथ है। तो जब मैं किसी को थैंक यू बोलता हूँ तो मुझे पता रहता है कि हाँ इस बंदे ने मेरी कुछ सहायता करी है, मुझे आगे बढ़ने में उसने एक सीढ़ी बना है, तो आई शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। Gratefulness is a key to a happy life that we hold in our hands. We are not grateful, then no matter how much we have, we will not be happy because we will always want to have something else or something more. अगर हम दूसरों को धन्यवाद देते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। और अगर हम किसी को धन्यवाद नहीं देते, बोलते हैं तो उसका काम था, तो उसका ड्यूटी है करने के लिए, तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे, हमको कभी खुशी नहीं मिलेगी, हम हमेशा किसी ना किसी प्रॉब्लम में डिफिकल्टी में पड़े रहेंगे, वो खुशी नहीं मिलेगी। और अगर मिलेगी भी थोड़ी देर के तुरंत गायब हो जाएगी। लेकिन अगर हम धन्यवाद देते हैं उस व्यक्ति को, उस आदमी को जिसने हमारे कुछ सहायता करी है, तो वी विल ऑलवेज हैप्पी, वी विल बी प्रोग्रेसिंग, वी विल बी ऑलवेज सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। Gratitude is a good quality which springs from the soul. Appreciation can bring major changes in your life. No, we have to be very very appreciable. हमको हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करा। भी किसी ने अच्छा गाना गाया, चलो ज़्यादा अच्छा नहीं गाया, फिर भी ठीक ठाक गाया, अगर हम उसे उसकी तारीफ करें, या तुमने अच्छा गाना किया, बहुत अच्छी बात, ऐसा और कोशिश करो। अगर हम ऐसा कहेंगे तो उसको क्या लगेगा, हाँ चलो किसी को मेरा गाना पसंद है, चलो मैं इस व्यक्ति के लिए गाना गाऊंगा, तो वो और इम्प्रूव करेगा एंड यू कैन बी ए गुड सिंगर। कोई ड्राइंग बना रहा है, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन ठीक नहीं था, फिर भी आप अगर उसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश थी, और कोशिश करो, है। अगर आप बोलते हैं और कोशिश करो, तो वो और इम्प्रूव करेगा कि मुझे थोड़ा सा और अलग तरीके से करना है, एंड यू विल बिकम अ गुड आर्टिस्ट। सो अप्रिसिएशन कैन चेंज अ पर्सन्स लाइफ। व्हाट इफ गॉड डिसाइड टू स्टॉप ब्लेसिंग अस? अगर ईश्वर आशीर्वाद देना बंद कर दे तो क्या होगा? हमको ईश्वर कई चीज़ों में आशीर्वाद देते हैं। जस्ट थिंक, व्हाट इफ गॉड couldn't take the time to bless us today because we couldn't take the time to thank him yesterday? What if God decided to stop leading us tomorrow because we did not follow him today? What if we never saw another flower bloom because we grumbled when God sent the rain? What if God didn't walk with us today because we failed to recognize it as his day? What if God stopped loving and caring for us because we failed to love and care for others? What if God would not hear us today because we did not listen to him yesterday? What if God answered our prayers the way we answer his call for service? What if God met our needs the way we gave him our lives? Be thankful. तो अगर ईश्वर काम करना बंद कर दे, अगर वो हमारी प्रार्थना सुनना बंद कर दे, क्यों? क्योंकि मैंने उसका कहना नहीं माना। अगर आज जैसे बारिश हुई, अगर मैंने ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, तो ईश्वर अगले दिन बारिश नहीं करेगा। छोड़ो, जब तुमको मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों करूँ तुम्हारी परवाह? दैट द गॉड मे थिंक्स, ऑलवेज बी थैंकफुल। When you think everything in your world is terrible and you want to give up, think of people who have been told they only have a certain amount of time to live. Even they don't want to give up. So कभी कभी क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी कमियां आती हैं, ठीक है। कई ऐसे, हम स्कूल आज जाना नहीं चाहते, मम्मी उठाती, चलो बेटा स्कूल जाओ, क्या मम्मी डेली स्कूल जाना है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, आज मेरे को छुट्टी मारनी है। तो सोचो उन बच्चों के बारे में जो स्कूल तो जाना चाहते हैं लेकिन स्कूल नहीं है, ठीक है। जब आपको मम्मी बोलती पढ़ो पढ़ो, बैठ के पढ़ो, आपको गुस्सा आ जाता, क्या हमेशा देखो पढ़ाई में बोलती रहती, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तब सोचो उन बच्चों के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताबें नहीं हैं। जब आप अपने आप को अपने क्या बोलते हैं कपड़ों से, या अपने जो मम्मी खाना बनाती है उससे आप तंग आ जाते, क्या मम्मी एक ही तरह खाना बनाती हो,
तब उन बच्चों के बारे में सोचो जिनको एक टाइम का भोजन भी नहीं मिलता। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ हमें सोचना चाहिए कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पास मेरे माता पिता है, रहने के लिए घर है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए भोजन है, इस दो बात करने के लिए मेरे दोस्त हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर मैं खुश नहीं हूँ, तब सोचो उन लोगों के बारे में जिनके पास ये कुछ सुविधा नहीं है। Think about it and be grateful, be thankful to your parents, towards God, towards your friend. I believe you might have understood the chapter. Thank you. Have a nice day.